All right. Okay, so what are the laws of photoelectric emission? First question. Laws of photoelectric emission. Okay, let me just type it. What are किन concepts को use करोगे? What are the laws of photoelectric emission? So, what laws do you propose to use to solve numericals on this? That is the first question. ठीक है? So, tell me what have you understood in the laws of photoelectric emission? जो मालूम है, you can tell. All the bullet points in your head pertaining to this chapter. जो so far we have covered, obviously. Okay, as an example, let me tell you. The first law which we learned, actually मैंने law दे दिया. Now, so read this very carefully. What does it say? This you already know, but now we're giving it names. Agreed? Yes, sir. ये पढ़ा है हमने इसलिए पढ़ा मैंने है। इसका नाम रख दिया. अगर लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन दो तो जो हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं वो सिर्फ लिखने हैं. अच्छा। Okay. Second, so these are nothing but what we've learnt हाँ, and now being expressed in proper English. okay. Something is not clear, feel free to ask me. नहीं क्लियर। ये भी पढ़ा हमने. हाँ, पढ़ा मैं है सर। एग्जैक्टली पढ़ा है कि नंबर जो होता है इट इज डिटरमिन्ड बाय द इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये डिसाइड करती है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा. एनर्जी एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट से डिसाइड होती है. लाइट मतलब ईएम वेव, लाइट मतलब रेडिएशन, एक ही बात है. सो इफ यू सी द वर्ड इंसिडेंट लाइट, इट मींस इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके। लाइट लिखा ना वहां पे इसलिए. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, threshold frequency of metals is different. True or false? ट्रू। Yes. Different metal, different. Okay. So these are the laws you are going to use to solve the problem. ओके। खत्म नहीं हुए हैं. Check this out. आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी जो हमने फाइनली निकाली थी, जो हम यूज कर रहे थे, करने वाले हैं? व्हाट वाज द आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो मैं बार बार एच लिख रहा बाय था? लेमडा। नो नो नो, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू. देखो ये आपने एनर्जी सप्लाई करी फोटोन से. अच्छा, ठीक है। ठीक है, सप्लाई करी. ये फोटोन की एनर्जी है. इसमें से एक हिस्सा वर्क फंक्शन के लिए आ गया, जो बैलेंस है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज हो गया. दिस इक्वेशन इज द Einstein's photoelectric equation. This is the energy of the incident photon. Of that, some part is utilized to remove the electron and the balance gets utilized to provide kinetic energy to the electron. ठीक है। That is what it means. और stopping potential जो होता है इसी से linked होता है. अब इलेक्ट्रॉन चल पड़ा, इसे रोक के देखते हैं
और पता लगाते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग कलेक्टेड ऑन द कलेक्टर साइड, they have a kinetic energy, and if you reverse the anode potential, these electrons come to a standstill, and you say we have supplied it a energy of ev naught equal to half mv square, which is the kinetic energy. So जब हम stopping potential पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ focus होता है हमारा। ठीक है। ठीक है जी, just a recall in a organized way. Fourth statement, maximum kinetic energy is only dependent on this incident frequency. अगर ये बहुत मोटा पैकेट आएगा तो जो the use of that energy for work function is fixed. If you hit it with a 10 electron volt photon and your utilization for work function is 2 ev, where will the balance go? Kinetic energy. Yes, sir. If I put 20 electron volts, still 2 electron volt for work function, keeping the metal same. Kinetic energy is electron volt, 18 now. So kinetic energy depends on the incident frequency, not on the intensity. कितने फोटोन मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काइनेटिक एनर्जी का कंट्रोल इसके पास है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के पास। Bigger the photon packet that comes and hits the metal, more kinetic energy the electron will have, because उसमें से जो यूज होना है वो तो सिर्फ वर्क फंक्शन ही होना है, वर्क फंक्शन होगा, बाकी तो सब चला गया काइनेटिक एनर्जी के पास। तो जितना बड़ा पैकेट मारोगे उतना फायदा है। नंबर ऑफ पैकेट से कोई लेना देना नहीं। आप 20 गुब्बारे मारो, लेकिन बंदा जो है वो एक बड़े गुब्बारे से ही उसको असर होता है। तो जब तक वो बड़ा गुब्बारा उसको नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला छोटे छोटे गुब्बारों से। Even if the sum of all the small packets in energy, if a threshold frequency of a metal is say 10 electron volts, if you hit this metal, that means to remove one electron you need 10 electron volt of a photon. To remove it you need minimum of 10 electron volt of photon, if the work function is this much। 10 का तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने बोला आई एम गोइंग टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन बट आई विल पुट 5, कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। यू नीड टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर से यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। number only decides how many electrons may come out, because each photon when strikes releases one electron. If you put 30 electrons, agreed, but the characteristic of the electron, which is the kinetic energy of the electron, you cannot control by number. That you can control by the quantity of the energy contained by the incident photon. Number of photons will decide how many electrons will come out, that's all, which is the intensity. Intensity of the light incident on the metal only decides how many electrons can come out, only when you have already made the frequency of that incident light greater than the threshold frequency. Otherwise you cannot नहीं निकाल सकते। आप बोल रहे मैंने 100 फोटोन मारे हैं, निकल नहीं रहा, क्योंकि आपने 100 मार लिए लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखा ही नहीं है। नहीं। तो ये जो आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रखते हो, ये बहुत काफी कुछ कंट्रोल करती है, नंबर नहीं कंट्रोल करती। एक फोटोन है, ये एक फोटोन की इक्वेशन है। एक फोटोन का खर्चा कैसे होता है वर्क फंक्शन में, एंड द बैलेंस गेट्स यूटिलाइज्ड इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द expenditure, how the h nu, the energy contained by the photon, gets utilized for removing the electron, and the balance energy is utilized for providing kinetic energy of the electron. ठीक है। I am repeating, but
it's a good, it doesn't, it's not harmful, right? It's okay. Yes sir. This I think I emphasized that there is no lag. It is instantaneous. बट ये ऐसा नहीं याद है। होता कि फोटोन आराम से जाता है फिर जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने रखा, आउट कम्स द इलेक्ट्रॉन. इट्स इंस्टेंटेनियस. यस सर। It's a collision kind of scenario. ये तो याद है। The photon strikes the electron comes out. If the threshold frequency has been taken care of. एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ सारी स्टेटमेंट्स का बिफोर आई जंप इनटू द यस सर। न्यूमेरिकल्स. और न्यूमेरिकल्स you will also learn once you discuss the numericals. You will learn from numericals also, okay? ठीक है। अच्छा, I think we discussed this, right? Instantaneous. So this is a repeat. Let's. So I'm removing this, not required. Okay. So whatever we learned, now we are giving it words, proper words, okay? Read it very carefully. Got it? It's 1-to-1. एक फोटोन से 20 नहीं निकाल पाओगे. Supposingly, I'll show you a situation. You have this metallic surface, okay? So this metallic surface is there, and let me draw a straight line first. I think this is looking absurd. So let me just draw a straight line. So this is your metallic surface, and what we are doing on this metallic surface is this. Okay, so you have a wave which comes, strikes. Now each electron has energy of say 10 electron volts. Photon. Okay, so this is the incident light, the photon. Incident light means photon. Sometimes it is written incident radiation, sometimes photon, sometimes light, sometimes incident light, sometimes incident EM wave, sometimes X-ray. One and the same thing. Only thing is suitable frequency, the threshold should be taken care of. The work function of the metal is 3 electron volt. So this is a single photon, obviously. So this is a single one photon which is coming. First question, how many electrons can it remove from the metal? 3. 1. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, बाकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी. ये लिखा है ना, 1 photon can only remove 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। रिमेम्बर दोपहर को भी हमने पढ़ा था. हाँ यस सर। तो 10 में से 3 तो इस्तेमाल हो गए निकालने के लिए, बाकी 7 काइनेटिक एनर्जी, which is what Einstein said. Understood now? Yes sir. So I need a second 10 electron volt photon to remove the second electron. उसका भी यही हाल होगा. 3 gets utilized and the 7 goes for kinetic energy. ठीक है. Make sense? Yes sir. Okay. Let's revisit what we will utilize in numericals also. Now we are going to visit Einstein's equation. Okay. You already know it, but just so read it. Einstein's photoelectric
Okay. When a photon of energy h nu falls on a metal, यही होती है ना फोटोन की एनर्जी. Yes, sir. The energy of the photon is absorbed by the electron in two ways. A part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of the energy utilized by the electron from photon as a source of energy is called work function. Clear है? हाँ, ये एच न्यू नॉट है, ठीक है. डोंट वरी कि छोटा क्यों नहीं आ रहा है. वो ठीक है. ठीक है, एच न्यू नॉट है वो. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. The remaining part of the energy is used in giving the velocity v to the photoelectron. फोटोइलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बाहर आया था. Okay. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Where there is a reason why I call this maximum kinetic energy and not minimum, या जानबूझ के क्यों नाम रखा है. You don't have to worry about it, okay? मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ. This is equal to the maximum kinetic energy. Actually, electrons जो बाहर आते हैं, they have different energies. ठीक है? Not all electrons come out with the same. There is some, so but for your practical purposes, it is the maximum kinetic. Equation में जो energy use होती है, वो maximum होती है. और ये जो है, this is again half mv square, by the way. Okay, so this is back and this is half mv square. So the maximum kinetic energy. So each electron is coming out with a velocity v, and this kinetic energy is written as half mv square. Mass m is the mass of the photoelectron का mass वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है. Photon h nu so ये इक्वेशन है. जो फोटोन आता है h nu, उसकी एनर्जी देखो कैसे यूज होती है. वन पार्ट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड इन दिस 5, दिख रहा है 5. हाँ, दिख रहा है. बाकी जो है वो यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में. ये जो 5 है, ये वर्क फंक्शन है. सो डोंट थिंक दिस इज अ न्यू टर्म. कुछ लोग W लिखते हैं इसको, कुछ लोग पसंद करते हैं इसको लिखना 5. जी, मैं 5 लिखता हूँ. ठीक है, इट्स योर चॉइस. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. ठीक है, होप दिस इज क्लियर, राइट? ये तो सिर्फ हाँ. मैथ्स ही और कुछ है नहीं. नहीं. Just in case they give you a damn easy question. Sometimes they do. Okay. Not every time it is very hard. अब क्या उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना दिया ना सारा Yes, sir. सिलेबस जेई का. So remember, the standard of the questions is going to be nice because they will say we have relieved you of burden. So whatever are the core concepts which are left, you be very good in them now. Now you have no excuse कि फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं ना. No, So बिल्कुल. you can expect good quality questions because the burden has been removed of non-core concepts. कुछ इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हटा दिए हैं और ये तो हम पढ़ेंगे भी.
इनमें से कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे. Okay. You don't need to know how it works, but you just know कि यूज होता है कहीं पे. रात को ठीक जो है. लाइट जलती है, ऑटोमेटिक स्विचिंग, स्ट्रीट लाइट, हम्म. फोटोमेट्री और फोटो डायोड, बहुत सारे यूज हैं. जो ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म. हम्म. चोर जब निकलता है ना, तो वो इट स्टॉप्स द इंसिडेंट रेडिएशन. दैट इज अ सिग्नल. Okay. Okay, some of the good things we also learned through graph. So if you have one which is okay, this graph. Intensity is all about number of electrons. हम्म. Intensity has nothing to do with threshold frequency. कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, जितने फोटोन होंगे उतने ही आएंगे. Yes, sir. तो इंटेंसिटी वर्सेस करंट, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी से तो करंट बनता है. हाँ. Yes, sir. और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. लीनियर रिलेशनशिप होता है. 1:1 तुम्हें मालूम है दैट. अगर हाँ. ये 1 अभी. फोटोन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो दैट इज व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द photoelectric current. Finally, all the electrons are collected on the anode. It results in generation of photoelectric current. Yes, sir. And this is the intensity of the incident light. माने photons जो मारे जा रहे हैं, कितने हम्म. मारे जा रहे हैं, intensity. More is the number, more is the current. Provided that suitable frequency, which is a threshold frequency, has been taken care of. ठीक है. Alrighty. Let's move to the next one. हम्म. दिस इज अ न्यू ग्राफ, हमने पहले डिस्कस नहीं करा. बट वी नो द कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट इज 1:1 करस्पॉन्डेंस. बिल्कुल इकट्ठे चलते हैं. हम्म. ठीक है. इफ यू हैव टू आर्टिकुलेट दिस, दैट आल्सो इज नॉट विद इन. दिस इज अ स्टेटमेंट वी ट्राइंग टू मेक. For a fixed frequency means the frequency greater than the threshold frequency, the energy of the photon, the frequency of the photon. A photon has a frequency also. हम्म. समझ And गया. the energy of a photon is h nu. पता है ना ये तो. हाँ. ये. हाँ जी. So when you're collecting current on the other side, it is not that the current will continuously increase if you bombard a metallic surface with infinite number of photons. भाई जितने photon हैं उसके पास,
मेटल के पास उतना फिक्स्ड है ना वो तो। हाँ। आप एक बाल्टी में ज्यादा बाल्टी को उल्टा कर दोगे तो पानी ज्यादा थोड़ा ना आ जाएगा, पानी तो उतना ही निकलेगा जितना है। यस सर। So there's a limit. So there's a saturation. So you हम्म। keep on bombarding a particular metal like this with a EM wave, which is made up of photons. Electrons come out from each of the photon, but it is not that you will have you put any number of photons, and for there it is mandatory for electron to come out of every collision, because there is a limit to which you can have the electrons. हम्म। So that limit is the saturation current. So ये आपकी intensity आपने बढ़ा दी यहाँ पे. हम्म। Right? This is your L2 intensity. Your number of photons have gone up. So number of electrons have also gone up. Since the number of electrons have gone up, the photo current start is higher. ज्यादा हाँ। इलेक्ट्रॉन से शुरू हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन से शुरू करा, फिर सॉरी 20 फोटोन से शुरू करा, बढ़ाते गए फोटॉन्स। और अच्छा सॉरी, दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए वर्सेस द ये कलेक्टिंग पोटेंशियल है पॉजिटिव, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक अनोड है। अब इस समय पॉजिटिव है टर्मिनल, और यहाँ पे फोटो एमिसिव मटेरियल है, उस पे फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और इसको वो खींच लेता है अपनी तरफ। सो ठीक है। यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर लगा देते हैं और वो करंट नाप रहा है। तो इफ यू इंक्रीज द intensity, what you realize is that the current which is being seen in photoelectric current, the photoelectric current which is being seen, which is the number of electrons being collected, that constitutes this current per second basis. If you increase the intensity, you realize that obviously the current goes up, because intensity increase करने का मतलब है पहले आप 2 फोटोन मार रहे थे, अब 4 मार रहे हो. Example, higher number of photons are striking the surface, so more electrons coming out per second, and hence the start current itself. And then you further increase the intensity, and what you realize is not that ये एक ऊपर ही चलता जाएगा ग्राफ. आप बोलोगे जी हम तो फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट क्यों फिक्स हो गया, या रीडिंग क्यों फिक्स हो गई, मैं तो अपने फोटोन बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो और फोटोन लगा रहा हूँ मैं और लगाऊंगा. बोला भाई तो अब एक इंटेंसिटी के बाद, मतलब एक नंबर ऑफ फोटॉन्स के बाद, you won't be able to get any electrons from the metal. Metal will say, I had enough, I don't have any more. So you do see a increase when you increase the intensity, but after a while there is a saturation which is achieved. Okay. And you can see this is a potential of A, which means the potential of the anode which is receiving. If you make it more and more positive, if you make it more and more positive, you see the potential is going up. So it is becoming more attractive, but after a certain while, it is the number of electrons reaching it per second basis becomes fixed. And therefore it becomes a flat line, this part. Initially, when you increase the potential, more electrons are able to reach you. ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल है समझना, थोड़ा सा हल्का सा, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट let me give you. Therefore, I'm taking my sweet time to ensure that you first revise the concept and you have a sense. अच्छा, saturation current भी होता है कुछ. ओके, saturation current के बारे में ये पता था मुझे. Bit hard to थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको ध्यान से पढ़ो. So how does potential change the at different intensity? At different intensity, एक सिनेरियो में ऊपर ग्राफ में इंटेंसिटी L1 थी, सेकंड में L2 है. ठीक है. ठीक है. पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको. That graph is being explained now. Okay, so this is not only the so when the electrons are coming out of the cathode, when the photoemissive material which is on the cathode is struck by the incident photons, not all electrons come out and start moving towards automatically.
though they have kinetic energy, they are actually are attracted by the anode. इलेक्ट्रॉन वहां रुक जाते हैं क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, मतलब वैसे तो हाँ। इवैक्यूएटेड है, बट assumption ये है कि when the electrons are coming out, they have kinetic energy in random direction. किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे वो तो। आपको तो उनको इकट्ठा करके करंट बनाना है ना, ये सब। तो वो कैसे करोगे आप? एक अनोड लगा दो, वो सबको एक ही डायरेक्शन में खींच लेगी अपनी तरफ, नहीं तो करेक्ट। इलेक्ट्रॉन तितर बितर हो जाएंगे इधर उधर। हाँ। What do you do if the motion of the electron becomes random and they don't come straight to the anode? You won't see any current. So in order to streamline the collection of current, what you do is you bring all the electrons in one stream towards the anode, and mm, so so electrons are coming out of metal continuously, but now at a certain potential, all the electrons reach the anode. If the potential is small, the capability of anode to collect all the electrons and streamline the process of collection is weak. But when the anode potential goes up, anode becomes very powerful, and all the electrons that come out of the metal, and definitely metal also has a limitation. It cannot release per second basis more number of electrons because that is what it has to offer. तो इनपुट भी जो आ रहा है मेटल से, वो एक फिक्स्ड लेवल तक ही आ सकता है, और उसको कलेक्ट करने की जो क्षमता है, द कैलिबर ऑफ योर anode is decisive. If your anode has high caliber, it's very strong, you increase the potential, it will collect all the electrons that are coming out of metal in one go, and which is why you see saturation. सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लिए गए, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, करंट नहीं बढ़ा, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके। स्लोप वैसे ऐसे होनी चाहिए थी, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, थोड़ी सी स्लोप है, इफ यू सी, थोड़ा सा एंगल है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है ये, बिल्कुल फ्लैट नहीं है एक्स एक्सिस के। अंडरस्टूड? हाँ। तो बेसिकली अनोड की जो ताकत है वो, सो दिस ग्राफ इज 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 मोर अबाउट anode's power here. Anode becomes very positive, and you keep higher intensity. You keep higher intensity from the start of the experiment, which means you say, I'm going to release more number of electrons per second basis from the metal because I'm bombarding it with higher intensity, which means I'm bombarding it with more number of photons. So more number of photons will mean more number of electrons coming out. And if the potential is reasonably high, then the electrons get collected also easily. So ये high potential है ना ये. This is a very low potential scenario. और ये तो और ही छोटा है. So potential right side पे बढ़ रहा है. The potential goes up on the right hand side. So here the potential is, I think if you see this carefully, from here onwards, the current is not increasing anymore. Whatever growth of the current that had to happen has already happened in this zone. Yes, sir. So यहाँ पे जो एनोड इकट्ठा कर रहा है, एनोड को आप पॉजिटिव करते जा रहे हो यहाँ से, एनोड जो है अब ज्यादा, पहले 5 इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था, जैसे एनोड स्ट्रांग हुआ 10 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कलेक्ट कर पा रहा है, और बढ़ाया 20 हो गया, एक लेवल आया 25 हो गया, उसके बाद आपको दिखता है 25 के ऊपर 26 जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, बस दैट्स इट। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल रहे हैं सारे आने लग गए हैं, per second basis में 25 electrons every second are striking the anode. Any further increase in potential really is not making much difference. इसके बाद जो आपने बढ़ाया potential, आपका करंट तो गया नहीं ऐसे ऊपर, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे अब सारे के सारे पहुंच ही गए, तो अब क्यों बढ़ेगा? The rate of electron flow is the current. First you were getting 5 electrons, then you were getting 10, you were showing growth in the current like this. So there was a growth happening. But once everybody reaches Y, there should be a growth. The number of electrons passing through that anode is fixed now. 25 electron आ गए हर बार, हर second में 25. Why will it show any growth? Growth only will happen when you have dq by dt. I. That means पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6, अब 10. तो
तो increase of electrons every second will give you current increase. But if the number of electrons reaching per second passing through the anode becomes fixed, 25 electrons per second, no more growth in the current. फिर करंट नहीं बढ़ेगा, डी आई बाई डी टी कुछ नहीं होने वाला. नो डी आई बाई डी टी. डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. यहाँ तो स्लोप है ना उसकी रेट ऑफ चेंज की, ये देखो. हाँ. यस सर. ये प्रैक्टिकली जीरो स्लोप ही हो गई है. हम्म. Okay, now see the reverse side. So first read this paragraph completely. नीचे जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लो. आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है. हम्म. हमेशा एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ता है. तो इसमें हमने वो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी उसको तो ओवरकम कर ही लिया और अच्छा हाँ. खासा एक तगड़ा फोटोन दे दिया. हम्म. So a fixed frequency and intensity of incident light is available. हम्म. फिक्स कर दी अब एक्सपेरिमेंट में. अगली बार एक्सपेरिमेंट करा तो फिर दिखाया कि इंटेंसिटी बढ़ी हुई है L2 पे. बट फर्स्ट द एक्सपेरिमेंट इज डन विद अ फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. देखो अगर फिक्स्ड इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो क्या होता है? व्हेन यू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, the current initially increases. When all the photoelectrons reach the plate, current becomes maximum, saturation happens, and that is why the name saturation current. Okay. Okay. Now what you do, you don't want the electrons to come. You say I will, तो anode को negative करना पड़ता है. हाँ. यस सर. Attractive की जगह repelling करना पड़ता है, right? So stopping potential. ठीक है, समझ गया. Saturation current तो पूरा खींच लिए इलेक्ट्रॉन्स. अब एक भी इलेक्ट्रॉन ना आने पाए, करंट जीरो हो जाए, तो एनोड को नेगेटिव करना शुरू करा. कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी बड़ी बहुत होती है उनके बाद मैक्सिमम वो पहुंच जाते हैं फिर भी. तो और नेगेटिव करा और नेगेटिव करा और नेगेटिव करा. और यू इफ यू रिमेंबर द ग्राफ वी हैड स्टडीड अर्लियर, रिवर्स साइड पे वो नेगेटिव साइड पे एक वो दिखाते हैं कट ऑफ पोटेंशियल or the stopping potential like this. So now the same graph but being drawn on the other side, because now the potential is being made negative. ठीक है. ये था ना उल्टी साइड पे. समझ गया. कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे भी पहुंचते हैं. करंट है, नेगेटिव हो गया पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के फिर भी आ रहे हैं. और नेगेटिव करा और नेगेटिव करा और एक फाइनली जीरो कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल. So this experiment was done at higher frequency photon. The photon size was very high. This experiment was done for a small photon because and remember, see, the saturation current for both is same, almost same. But the saturation, but the cutoff potential is different. जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी उसका फोटोन बहुत बड़ा था और इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन ज्यादा थी उसके पास, तो उसको रोकने में ज्यादा मुश्किल हुई है, इसलिए हायर नेगेटिव पोटेंशियल. I told you that h nu is the frequency, h nu 1, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, 2 चलो, हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर. आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो गई. यस सर. इसको रोकने के लिए इसलिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ा. ठीक है. तो इस हाफ mv स्क्वायर एक्चुअली is equal to EV stopping potential. एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों आनी चाहिए. Got it? Yes, sir. Great.
Okay, tell me, what does this graph represent? Now that you've seen the statements and all that, give it a shot if you can. I treat you as somebody who's now slightly more mature. तो कौन सा ग्राफ? Just pasting it. ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है ग्राफ? Okay, so Vs always represents the variable Vs always represents the stopping potential. Okay, so this is V stopping, and this is frequency threshold, nu naught. So what does this graph tell you? Basically, Vs जो होता है, EVs is equal to half mv square, right? So if I write the equation, h nu is equal to h nu naught plus half mv square, okay? Okay. And what is this equal to EV naught? EVS और EV naught, जो भी नाम रखना रख लो, पॉपुलरली नोन एज ई स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये कितना पोटेंशियल लगेगा इसको जीरो करने के लिए, वो ये है, नेगेटिव एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कम्स रनिंग, देन नोट इट डाउन, उतनी यहाँ से नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं, पूरा रुक जाता है इलेक्ट्रॉन. जैसे ही फोटो एमिसिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, रुक जाता है यहाँ पे. नो करंट इज देयरफॉर ऑब्जर्व्ड ऑन द अनोड साइड, जीरो करंट. सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये दोनों बराबर है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर है, काम में उल्टा काम कर रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी तो आना चाहती है एनोड की तरफ, बट ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे रोक के जीरो कर देता है. ठीक है. तो ये ग्राफ ये दिखाता है कि दिस ग्राफ टेल्स यू दैट दिस पर्टिकुलर रेंज, यहां तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. एंड यू कैन सी राइट दिस EV, अगर ये EY लिख दूं मैं इसको, EY इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट. तो मैं इसको लिख सकता हूँ EY इज इक्वल टू HX माइनस h न्यू नॉट. ये x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बना दी मैंने. ठीक है. और h तो पॉजिटिव होता है. हाँ. तो ये पॉजिटिव है, स्लोप होता है ना ग्राफ का, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो मैं इसको लिख देता हूँ y इज इक्वल टू hx बाय e माइनस h न्यू नॉट बाय e. रिमेंबर, x को मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नाम बदल दिया बस, दैट्स ऑल. आई हैव डन नथिंग. x इज फ्रीक्वेंसी, आई कैन रीराइट इट एज h न्यू बाय e माइनस h न्यू बाय e, और दिस इज vs. तो इसकी जो स्लोप है इस ग्राफ की, दैट इज h बाय e, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. और ये जो इसका जो इंटरसेप्ट है, ये वाला x इंटरसेप्ट, वो ये है, थ्रेशोल्ड से आ रहा है, और इसकी जो स्लोप है h बाई e है. तो ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, लीनियरली बढ़ता रहेगा, क्योंकि दोनों की पावर 1 है. हायर इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, that means the electron is coming out with a lot of kinetic energy, and that is because you have applied a very high energy photon. तो उसमें से थोड़ा हिस्सा ही जाता है, वो तो फिक्स्ड ही रहता है, for overcoming the surface barrier, and the balance continuously, if you have higher frequency being used, more kinetic energy will get released, you will need more stopping potential. अगर बहुत बड़ी एनर्जी वाला फोटोन भेजोगे तो और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल खर्च होगा उसको रोकने के लिए. ठीक है. क्यों? समझ गया. नाउ यू सी राइट, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, ग्राफ में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे. A lot of questions in JEE mains and school examination, sorry, board examination are based on graph. The probability of these questions coming in both is identical. कोई फर्क नहीं है. आते हैं बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं. अच्छा. तो आज मैं सारे ग्राफिकल क्वेश्चन तो अभी नहीं करवाऊंगा, because I think you have to set your hand on photoelectric effect first, which is these two equations. So once you have a good command over algebra type of questions, कि velocity निकालो, threshold निकालो, बाकी सब चीजें दी हुई हैं,
कौन सी इक्वेशन यूज करनी है. Then we will progress in the part 2 of the numerical practice, which is graphical physics. ठीक है. Okay, so just give me 1 second. Now I will share some questions on the topic of I'm just copying and pasting. Okay, just before I proceed, just one more thing. I think you mentioned it, but I will just redo this. So in the phone, you not half, and W is the work function. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Internet is slow, थोड़ा unstable है. I आपकी hope it is आवाज back बहुत now. कट रही है. Is it better now? हाँ, अब ठीक है. Okay. Yeah, वो internet unstable आ रहा था लिखा हुआ. हम्म, So see, for example, electron, a work function of a metal is 2.4 electron volt. हम्म. Who will provide it the energy to, overcome the surface barrier? Photon. फोटो. फोटोन, तो वो कौन सा फोटोन होगा जो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा? उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं. तो एक्चुअल इक्वेशन होती है एच न्यू इज इक्वल टू 5 + ½ mv². वर्क फंक्शन को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं. यार फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जो इसको निकाल देगी? तो व्हाट वी डू इज वी राइट 5 आल्सो एज एच न्यू नॉट. तो वर्क फंक्शन इज रिटन एज एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, the bare minimum frequency, because this work is bare minimum work to remove the electron. बाकी तो काइनेटिक एनर्जी में चला गया रैंडम. हाँ. रैंडम डायरेक्शन मतलब उनको इकट्ठा करने के लिए पुट एन अनोड, सो ऑल ऑफ देम स्टार्ट मूविंग हियर. बट the basic equation of Einstein was the photon energy will get utilized in work function and half mv square. People said, oh, so you need this much energy to remove the electron. Yes, I do. So let's say this energy is W, or I will write a photon of this much frequency. If it strikes the surface, we'll be able to remove it. है तो वर्क फंक्शन कन्वर्ट कर लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर. उसकी जगह आप लिखना शुरू कर दिया एच न्यू इज इक्वल टू, ये वर्क फंक्शन ही है. वर्क फंक्शन इज आफ्टर ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी the metal needs to remove the electron to overcome the surface barrier. हाँ. But who will provide that work function energy? Photon. So somebody said, okay, metal का बताना जी, सोडियम का कितना होता है? बोला सोडियम का जी 2.4 होता है. अच्छा, सोडियम को 2.4 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दो, को निकल जाएगा? बोला निकल जाएगा. So the work function helps you calculate the threshold frequency of a metal. For example, there is a metal which is a work function of 10 electron volt. And the question is, what is its threshold frequency? Okay. Answer. ठीक है. समझ आ गया क्या करा है मैंने? हाँ. So your first question is that only. Very fundamental. ठीक है. So that right from basic, try this and you can see how difficult it is. Do this.
अभी अभी हमने पढ़ा है सेम टू सेम। हाँ, हो जाए। सब पता है ना क्या करना है। हम्म। 66.3 इज इक्वल टू एच न्यू। बट यस सर। रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, वो जूल में आता है एच न्यू, बी वेरी केयरफुल। हाँ, कि यूनिट्स का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेफ्ट पे इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 करा गया। हम्म, ठीक है। जस्ट बी वेरी केयरफुल कि वो कन्वर्जन करीब ही है 1.6 वाले, नहीं तो गए काम से। हाँ, ठीक है सर। समझ गए ना क्या है मतलब, हाँ, फॉर्मूला समझ गया। फिटिंग बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बोल रहा। ये आता नहीं है क्वेश्चन कहीं पे भी बट ये पता होना चाहिए। ठीक है सर। दे विल नॉट आस्क यू दिस, दिस इज टू टू एलिमेंट्री राइट। हम्म, यूज तो इसका होगा। नेक्स्ट। निकालता हूँ। अच्छा, करना नहीं हो? नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं करना। पता है ठीक ना है। कि क्या करना है। हाँ, यस सर। Try this. Okay, so you know another formula which you just mentioned. So you know energy is equal to h nu and photon की velocity is h c बाय by लेमडा। lambda में भी लिख सकते हैं, right? ये भी पता है. So read this question. Tell me if you can relate to this. h की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, वैसे बोर्ड में दी होती है। अच्छा। वो 10⁸ है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी। हाँ, ये तो हो जाएगा, इजी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट, कोई नो हाँ। ब्रेनर कुछ नहीं है इसके अंदर करने का, नथिंग टू डू। हम्म, क्वेश्चन सारे ही ऐसे होते हैं, इट इज हाउ मच यू प्रैक्टिस देम। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वन ऑफ देम इज दिस इज इजी और दैट विल बी टफ। हम्म, जस्ट दैट हाउ मच ऑफ कंसंट्रेशन यू हैव शोन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। लो जी। ठीक। ये नहीं करना? जहां छोटा नजर आ रहा है वो 10⁻⁴ है। एक बहुत हाँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी इसके अंदर, वो 10 14 लिखा हुआ है जैसे, हम्म, ये दिख रहा है ना, 6 × 10⁻⁴ है ये। ये दिख रहा है। ट्राई दिस, ये करने वाला है। ओके। पहला पार्ट बहुत इजी है, लेकिन सेकेंड पार्ट में देयर विल बी सम अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। First part is straightforward, right? It's formula डन। fitting. Now see the use of power. How will you use power? Remember, power is energy by time. एंड अगर ज्यादा फोटोन है तो एक की अगर एनर्जी मालूम है तो ज्यादा की एनर्जी होगी एनएच न्यू। आपको एक लेजर बीम दी हुई है ना, एज अ सोर्स ऑफ एन एच। इंसिडेंट रेडिएशन। तो पी बाई ई हो जाएगी, नंबर ऑफ देखो, फोटॉन्स। पावर इज इक्वल टू E/T। हाँ। एनर्जी विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, वो निकाल ली ऊपर। हम्म, ठीक, आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये निकालना, हाँ यू राइट।
You have to find this, right? So So it N by will T be, is equal to P by E. yes, can say, yeah, yes. So E by टी हो गई, तो ये आपको N by T निकालना है. सो पावर अपॉन एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू Is N equal by to T. N by ये T. आ जाएगा. करेक्ट. Yes, sir. ठीक है. Point zero five into 10 to the power 17. ओके. ठीक है. आई एम नॉट बॉदरिंग टू चेक इट. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड, राइट? कितना हाँ. है आंसर? 5 इंटू, ठीक है. 0.05 into 10 to the power 17. वो ठीक है, चलेगा. 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 है. और एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी आई है? 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर -19. मेरी आई 39.6 into 10 to the power minus 20. 39 पॉइंट, 6 अच्छा हाँ, इंटू 10 रेज टू पावर -19, राइट? minus 20. हाँ ठीक है. ठीक है ये. और उसके बाद क्या करा? कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ लग लो, लग रहा 39. तो यार 15 हो गया ना फिर तो ये. 2, 2, 2, 2, 2, 2. एक बार मैं अपनी चेक करता हूँ करके फिर। हाँ 5 ही तो आ गया. 15 ही तो, 5 ही तो होगा, सॉरी. 5 नॉट 15, मेरा मतलब 0.05 में नहीं. अच्छा वो हटा दिया तो हाँ वो हाँ हो हाँ, जाएगा। है ना, सही है ना, मैच हो गया ना. हाँ यस। ठीक है. ओके, नाउ यू हैव टू टेक 5% ऑफ द टोटल एनर्जी, दैट्स ऑल. धीरे धीरे यू कैन इजीली डू दिस. जस्ट डू एवरी चैप्टर इक्वली विद फोकस, तो हो जाता है. जिससे बेटा वही क्वेश्चन आते रहते हैं. यस। इसमें आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज, जो भी लाइट निकल रही है ना 100 वॉट बल्ब से, हाँ यू आर ओनली गोइंग टू यूज 5%.
क्योंकि ठीक। बल्ब से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, लेकिन जो यूज हो रहा है ना फोटोन एमिशन के लिए, दैट इज 5%। ठीक लिखा है। है ना, 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बल्ब इज एंड हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटॉन्स आर एमिटेड। तो वही पर हम्म, सेकेंड बेसिस पे निकालना है, बट 100 वॉट का 5% लेना है, क्योंकि सिर्फ, अच्छा नहीं, पावर विल रिमेन द सेम, आई एम सॉरी। 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड, तो एनर्जी ई इज गिवन बाय एन आर। पावर तो हो गई आपकी इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, सो दिस इज 100 वॉट, बट एनर्जी विच इज बीइंग सप्लाइड इज 5%। हम्म, 5% ऑफ द एनर्जी ओनली, जो बल्ब, देखो बल्ब खुद भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए होती है ना उसको। हम्म, तो बल्ब को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, मान लो 100 वॉट्स पर सेकेंड, तो इसने जो एमिशन करी यहाँ पे लाइट की, वो सिर्फ 5% ही यूज कर पाया इसका। हम्म, सो एक्चुअल जो आप रिलीज कर रहे हो दुनिया में, आपको मिल 100 रहा है, आप खुद कितना रिलीज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स? 5 वॉट्स ओनली। 5 वॉट। अब तो बहुत इजी हो गया। सेम, हम्म, ठीक है। एक फोटोन का निकाल लो, क्योंकि योर गिवन वेवलेंथ, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। गॉट इट? यस सर। रीड द, समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के देखो। आप एक बल्ब को जलाने के लिए 100 वॉट्स जो सप्लाई करते हो उसे, बल्ब नीड्स 100 जूल्स 1 सेकेंड टू लाइट अप, बट जो बल्ब, वही बल्ब जब रेडिएशन एमिट करता है तो सिर्फ 5% ही यूज करता है। हम्म, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज क्लियर? हाँ। तो ये सन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फोटॉन्स, हम्म, द bulb is also a source of photon.
शुड आई शो यू द थंबनेल व्हिच आई मेड? यस सर। मेरा आजकल नया इंटरेस्ट है इसके अंदर। अच्छा। दिखाता हूँ। ओह, लुक। बढ़िया सर। हम्म, मैं सोचता हूँ यार कि 14 15 16 17 साल के बच्चे कैसे सोचते हैं। हम्म, टीजर बनाओ बढ़िया जी सर। आइंस्टाइन का। हम्म, चलो करो न्यूमेरिकल। हम्म, ओके, सोर्स है कोई, उसका पावर आउटपुट जबरदस्त है भाई। मतलब वो हम्म, लाइट ही एमिट करता है, पूरा 66 वॉट के फोटोन आ रहे हैं। आपको यस सर। टीबी दे दिया है इसके अंदर, तो सिर्फ आपको n/t नहीं, सिर्फ n निकालना है, टीबी पकड़ा दिया है। यस सर। नाउ यू आर फाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, रिमेंबर दैट। हम्म, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल रहे हो आप, ठीक है? ये कंपैरेटिवली थोड़ा टेंशन फ्री है, ये थोड़ा सा चैप्टर। हाँ यस सर। लेकिन इसके ग्राफ समझने में एफर्ट है बहुत। हम्म, थोड़ा सा मत्था मारी है, मतलब यू विल हैव टू गो डीप इनसाइड अगेन। आई थिंक मैथ्स में तो हमने काफी पुल कर लिया। बेटर। फिजिक्स में पुल कर देंगे 3 चैप्टर कंटिन्यूस, फिर मैथ्स को पुल करेंगे एकदम। ठीक है। टेल मी इफ यू फाइंड इट हार्ड। हो गया सर। समझ में आ गया ना? हम्म, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? बार 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 वही चीज है। यस। गुड जॉब, बढ़िया।
गियर बदल रहे हैं थोड़ा। ओके। ओ नो। ये क्या हो रहा है? कॉपी तो कुछ करा हुआ है मैंने यार, ये इट इज थ्रोइंग आउट द थंबनेल, जबकि मैंने कॉपी नहीं करा। डॉट। दैट्स वियर्ड। एनीवे, अब देखते हैं क्या आता है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग टाइम टू स्टडी। हम्म। So there's a table given to you. हम्म। Read that table and solve this. It's a CBSE sample paper question. ओके। आराम से पढ़ना। आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं आती तो पूछ लो, नो हम्म। वरीज। ये जस्ट
समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? शायद। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? मैं इसमें वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो जो हाँ, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट वह आएगी। फंक्शन से बड़ा हो जाएगा वो हाँ। उसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? अच्छा, वेवलेंथ है। अच्छा ठीक है, देन यू विल डिवाइड, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ठीक सही है, सोच सही है। है, एमओ नहीं करेगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया 4 एम ओ का, हाँ नहीं क्रॉस हुआ। ठीक है, एक्सलेंट, गुड जॉब डैड, ठीक है। गुड अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेटेड। Should you write because the energy of incident photon is इज less ग्रेटर than the देन द work function? वर्क। मतलब लिखना होता है, यस सर। पेपर के लिए कह रहा हूँ, मतलब मैं वैसे ठीक बिल्कुल। है। हाँ। आते हैं जो है ठीक डाल लेना। बिल्कुल। वो तो अभी मैं तुम्हारी ठुकाई करने वाला हूँ पेपर देके तुम्हारी, चिंता मत करो, तुम्हारी आते सारी सारी बाहर आने वाली है। बिल्कुल। मेन है कि इम्प्रूवमेंट शुड बी देयर, पुरानी गलतियां नहीं करनी हमने, खत्म। हम्म। वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द पास्ट। जनरली मिस्टेक्स नंबर 1, नॉट डूइंग असाइनमेंट। हम्म। मिस्टेक नंबर 2, नॉट डूइंग टेस्ट पेपर्स। यस सर। दो गलतियां बहुत बड़ी, समझाने वाले समझ जाते हैं एक बार, दूसरी तीसरी, लेकिन उसको आपने अपने हाथ से करा नहीं हम्म। एग्जाम लायक। वो एक दिन फिर आदत पड़ती नहीं है, वो यू टू बी वेरी रेगुलर इन योर टेस्ट्स बिल्कुल। एंड असाइनमेंट्स। उसके लिए आपको दोबारा पढ़ना भी पड़ता है, दोबारा से रिवाइज भी करना पड़ता है वो, लेकिन वो है करना पड़ेगा ना यार, क्या करें। हाँ इस बात पे। ओ, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, ईवीएस दिए दिया। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन लिख लेंगे हम। हम्म। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं तो ईवीएस लिख देंगे हम। ठीक है, वोल्टेज दी हुई है, स्टॉपिंग ई चार्ज मालूम है। यस सर।
एनी डाउट? नहीं सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईवीएस इज द ट्रिक टू अंडरस्टैंड कि ईवीएस को कैसे इंट्रोड्यूस करें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर। एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आइंस्टाइन की समझ आ जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उससे। यस। सर एक बार बोर्ड रिस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नहीं चला। नहीं सर। ओके, आ गया। ये कोई और बोर्ड है सर। भी कोई और है? हम्म। ओके। हाँ, यही है। हाँ ये। वेयर आर वी, विच पेज आर वी ऑन? थर्ड पेज। थर्ड पेज पे, ओके, लेट मी गो देयर। हाँ चल गया। ओके, ठीक है, आई एम देयर।
ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? सेम एज EVS आई टोल्ड यू भाई। इक्वेशन इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ। और हाफ एम वी स्क्वायर निकालने के लिए इक्वल टू जितना EVS है वही काइनेटिक एनर्जी है। हम्म। EVS लगाया ही जाता है काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए, तो मैग्नीट्यूड में उल्टा सेम होता है, साइन रिवर्स्ड होता है बस। तो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्लियर है? ठीक है सर। व्हाट्स अ डाउट नाउ? वो मैंने गलत कर दिया भाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। हम्म, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो दिया हुआ है ना, वो भी दी हुई है ये वाली। लैम्बडा भी दिया है सर। इंसिडेंट तो एच न्यू भी दिया हुआ है, ये तो निकाल तो लिया एच न्यू। हम्म, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी दिया हुआ है। यस सर। थ्रेशोल्ड का है, अच्छा वो दिया ही नहीं है। निकालने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं है, ठीक है, मेक सेंस। निकाल भी सकते हैं क्योंकि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EVS, ये दिया हुआ है, हम्म, मतलब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.54 इंटू ई, ये भी दिया हुआ है। हाँ। इफ यू हैव टू फाइंड थर्ड क्वेश्चन एज अ वर्क फंक्शन तो ये भी निकल जाएगा। ये पता है, निकाल लिया अभी, ये भी हम्म, निकल जाएगा, वर्क फंक्शन हाँ, भी निकल सकता है। ठीक है, क्लियर है। वर्क फंक्शन निकाल दिया तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है। हम्म, पीछे पूछ सकते थे नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव, EM वेव, दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पता है, ये पता है, तो वर्क फंक्शन अगर मालूम चल जाए तो व्हाट इज स्टॉपिंग टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल राइट? हम्म, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड मीट टुमारो। थैंक यू वेरी यस सर। मच। थैंक आई यू एम गोइंग टू सर। फेंड